अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। मैथ्स में आपको खुशामदीद। आज जो हम काम करने जा रहे हैं वो है सिन टेक्स्ट बुक क्लास 9 की यूनिट 4 है फैक्टराइजेशन, और उसकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम करेंगे 4.1 है ये। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8। इसके ये 4 पार्ट हैं, ये आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इंशाल्लाह। तो बेटा सबसे पहले आप मेरा मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो से आप बाखबर रहें, और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे समझाने के काबिल बनाए और आपको इतनी समझ दे कि आप समझ सकें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। बेटा आपका ये सवाल है फैक्टराइज। सब पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर होते क्या हैं। सब बहुत आसान लफ्ज़ों में अगर बताया जाए तो फैक्टर मीन्स टू ब्रेक समथिंग, किसी भी चीज़ को तोड़ना। आप जितने टुकड़े कर सकते हैं आप उसके उतने टुकड़े कर दें। फैक्टर 3-4 तरह के होते हैं, किसी में हमें कॉमन निकालना होता है, किसी में हमें फार्मूला अप्लाई होता है, किसी में हमें कॉमन निकाल के फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशंस होती हैं। बेटा देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें 2 वैल्यूज़ हैं, सही है। एक है रूट ए बी स्क्वायर, एक है रूट सी स्क्वायर। 2 वैल्यूज़ हैं, सेंटर में नेगेटिव साइन है। अगर 2 वैल्यूज़ हैं और सेंटर में नेगेटिव साइन है तो और स्क्वायरिंग भी है, तो आपने सिर्फ एक काम करना है कि आपने एक फार्मूला इसमें अप्लाई करना है जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड वी ऑल नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि आप रीराइट करेंगे क्वेश्चन, then apply in the formula which is a square minus b square. Okay, what is a is ab, what is b is root c. Now we all know a square minus b square always equal to a minus b, a plus b. मेरे प्यारे बच्चों, always try to make the bracket first then put the values, it will never be any mistake inshallah. What is a? Root ab. What is b? Root c. ab root c. Now a square minus b square equals a minus b into a plus b. This is the answer. Okay, now moving on to the next one, which is 4x root 4x square minus root 9y square. Same here, the same value, which is, we have two different values with negative sign. We are going to apply the formula of a square minus b square. Now try to solve. Rewrite the question again. 4x a square minus root 9y square, applying in the form of formula which is a square minus b square. I am continuously talking you bete, please try to make the bracket first then put the value. Now what is a? Root 4x. What is b? Root 9y. Now we are going to open the formula. A square minus b square equals a minus b, okay, into a plus b. What is a? A is root x. What is b? Root y. A is root x, and what is b? Root y. If you want to remove the curly bracket, you can. 4x minus 9y, both are in root, into 4x plus root 9y is the answer. ठीक है? Here the third part, we have a value, we have two values. One is without fraction and the second one is in the fraction. No matter, try to solve it. Bismillah. A square minus 1 upon yz root square. Okay, applying in the formula form, a square minus b square. I am always make the bracket first, and I know inshallah there will be no mistake in my questions. Now root yz and 1 by root yz. Okay, now applying the formula, now I am going to open the formula of a square minus b square, which is equal to a minus b into a plus b. I think you all will see कि when we will make the bracket first, there will be no mistake. What is a? Root yz. What is b? 1 by root yz. Okay, a root yz
plus 1 by root yz. If you want to open the curly bracket, remove the curly bracket, you can easily. Okay. Now root yz minus 1 by root yz into root yz plus 1 by root yz is the answer. Beta, here we can see we have the fourth part. ठीक है, but we have two values, but there is no squaring on both. I don't know, it was the book mistake, the printing mistake, I don't know, but there is the question xzt minus 1 by t. नो मैटर, जो सवाल हमें दिया गया है हम उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अब इसमें स्क्वायर तो है नहीं जो हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें, तो व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, फर्स्ट वी शुड रीराइट द क्वेश्चन. ओके, मेक इक्वल्स बिफोर द line. Now we have two values but no formula and no applying any formula. So what should we do? We can take the common from both. What should we take common? T, I think. T पहली टर्म के पास भी है, दूसरी टर्म के पास भी है, तो मैंने लिखा टेकन T. टेकन T कॉमन. ठीक है बेटे, अब जब मैंने जो चीज़ मैंने कॉमन निकाली है वो घर के बाहर आ गई है. सही है. अब हमारे पास, अब वी कैन मेक द कर्ली ब्रैकेट. अब आपके पास दो ब्रैकेट, आपके पास दो वैल्यूज है बेटा. टी दोनों के पास था, बाहर आ चुका. अब आप इसके पास जाएंगे तो भाई ये कहेगा कि टी तो भाई एक ही था, वो बाहर जा चुका. क्या बचा है आपके पास? एक्स एंड जी. यू विल राइट एक्स जी. पुट द साइन इन द सेंटर, माइनस और प्लस. ओके. एंड 1 अपॉन टी, 1 इज 1 बाय टी, एक ही टी था, बाहर जा चुका. देयर इज नथिंग रिमेन विच इज ओनली 1 लेफ्ट. ओके, दिस इज द आंसर. उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 8 फैक्टराइजेशन चैप्टर 4.1 के ये चारों पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे. अपनी दुआओं में याद रखिएगा और याद से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें. जज़ाकल्लाह.